So now we are going to start today with nuclear pollution, or you can say nuclear pollution. Yes, till I guess thermal pollution we have completed. Now we are going to start with nuclear pollution. So, so nuclear pollution are also called as radioactive pollution. Radioactive pollution are also termed as nuclear pollution. It's due to increase of the use of radioactivity. Okay, due to the increased use of radioactivity, there cause the pollution of nuclear pollution or radioactive pollution. It occurs mostly from the waste that are left behind after the use of radioactive substance. After using radioactive substance, those wastage which are left behind are called as nuclear pollution, pollutant, or radioactive pollution. A large amount of radioactive waste is generated from nuclear reactor, okay, used in nuclear power plant and for many other purposes. So a large number of radioactive waste is generated, and uh, a large amount of these nuclear pollutants are used. So it occurs during the extraction and refining of the radioactive material. Nuclear accidents and nuclear explosions are the two worst man-made source of radioactive pollution. So the two worst form of radioactive pollution, or you can say nuclear pollution, are examples are nuclear accidents, okay, and the second one is nuclear explosion. These are the worst form of nuclear pollution. So now we will move to radiation. So once again, I'm repeating, what is nuclear pollution? Nuclear pollution are the pollution or the remaining of product or waste product used in radioactive substances. Okay, after radioactive substances or after radioactive reaction, the substance which are remaining are termed as waste material. Those waste materials are called as nuclear pollution. Now, what is radiation? Radiation is the process by which radiant energy is transferred from one place to another in the form of electromagnetic wave. Okay, so radiation is a process in which the radiating energies is transferred from one place to another in the form of electromagnetic wave. How they are transferred? In the form of electromagnetic wave. So the cell phone towers, cordless phones, TVs, computers, microwave, ovens, okay, broadcast, antennas, military and aviation radar, satellites, and wireless internet and medical x-rays are the example of a sound source of radiation. These are the source of radiation. Okay. Second comes the radioactive substances. So radioactive substances are the substances which have the ability to emit high energy particles like alpha and beta particles and gamma rays. So radioactive substances are those substances which emits high radiation power energies like alpha, beta particles and gamma rays. So they are called radioactive substances. Radioactive substances are actually unstable in nature and are continuously emitting these particles in order to gain some stability. So they are unstable particles. Radioactive particles जो होते हैं वो unstable particles होते हैं और ये क्या करते हैं continuously emit करते रहते हैं. मतलब one place to another they tend to emit. Okay. So next is nuclear pollution definition. Now what is the definition of nuclear pollution? So the emission of energy from radioactive substance into the environment is called as radioactive pollution. ठीक है, जो एनर्जी निकल रहा है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से एनवायरनमेंट में हमारे, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोल्यूशन कहते हैं. Once again, I am repeating, the emission of energy from radioactive substances into the environment is called as radioactive pollution. Okay. If the level of radioactive radiation increases above a certain level, it causes harmful effect to the living beings. This harmful level of radiation emitted by radioactive elements result in radioactive pollution. तो radioactive pollution कब होता है? जब जो ये रेज है ना, ये हायर लेवल में रिलीज हो रही है जो कि हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए.
लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट, ओके। किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जब ये रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है हार्मफुल हो जाते हैं, देन इट इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ओके, अब सोर्सेस क्या क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आर, द सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन्वॉल्व्स any process that emanates radiation in the environment. It can be both natural and man-made. ठीक है, तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? बोथ नेचुरल और मेन मेड दोनों सोर्सेस हो सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल सोर्सेस। ओके, नेचुरल सोर्सेस में क्या क्या आता है? रेडियो एक्टिव मिनरल्स, कॉस्मिक रेज एंड रेडियो न्यूक्लाइड्स। ठीक है, ये सारे आते हैं नेचुरल सोर्स में, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स में। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि व्हाट आर दीज। ओके, सो द फर्स्ट इज, और जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेन मेड रेडिएशन है, जो जो नेचुरल होता है ना वो इतना हार्मफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जो मेन मेड है और आर्टिफिशियल, मैन मेड को ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो दे आर द मोस्ट हार्मफुल वन। तो हम लोग अभी देखेंगे द वेरियस सोर्स ऑफ मेन मेड रेडिएशन पोल्यूशन आर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं मेन मेड पोल्यूशन जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और मेन मेड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं? बेसिकली दे एमिट रेडिएशन विच आर वेरी हार्मफुल। अगर कभी गलती से लीकेज हो गया या एक्सप्लोजन हो गया तो मतलब बहुत बड़ा हजार्ड कॉज होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एमिट रेडिएशन टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट एक्सेप्ट एक्सीडेंटल लीकेज। वैसे तो ये बहुत कम हार्मफुल रेडिएशन एमिट करता है अगर अच्छे से हैंडल किया जाए, अगर कोई एक्सीडेंट ना हो। बट अगर एक्सीडेंट हो गया तो दे आर रियली हार्मफुल, ठीक है। ये जेनेटिक म्यूटेशन करने तक के लिए भी कैपेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, सेकंड इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है, द न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट। दिस इन टर्न कॉजेज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। जितने भी वेस्ट जो निकलते हैं इन सारे ये सब से, है ना, तो जो उनका वेस्ट होता है वो कहा जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट और पोल्यूशन। ओके, पोल्यूटेंट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। किसी भी तरह का द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी रिलीजिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड इट्स इफेक्ट कैन बी बोथ इमीडिएट एंड डिलेड। तो जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, मतलब जैसे जब न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है वो या तो फिर इमीडिएट हो सकता है कि आप तुरंत ही उसका इमीडिएट इफेक्ट देख लो कि लोगों की डेथ हो रही है और कोई डिजीज कंडीशन हो रहा है। बट किसी किसी में क्या होता है कि डिलेड भी होता है ये, ठीक है। तो एक तो है इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा और एक आएगा डिलेड। सो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का रिएक्शन, ओके। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अ लार्ज नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स आर जनरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। तो होता क्या है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम में? कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम में ये होता है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर जनरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो जनरेट होने लग जाते हैं। और जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये रेन के साथ में नीचे, पहले तो ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, उसके बाद क्या होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, जैसे ही रेनफॉल होगा ये सेटल डाउन हो जाते हैं सॉइल में और वाटर बॉडीज में। अब क्या हो गया कि ये सॉइल में भी आ गए, वाटर बॉडीज में भी आ गए। पहले ये एटमॉस्फेयर में थे, ठीक है। और इसी वजह से ये सॉइल में आ गए हैं या वाटर में आ गए हैं, तो अब ये क्या होता है हमारे फूड चेन में घुस जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? नाउ दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कम रेडियो आइसोटॉप्स। अब रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आइदर बाय न्यूक्लियर फ्यूजन और बाय न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं? आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं, आइदर न्यूक्लियर फ्यूजन से होते हैं या न्यूक्लियर फिशन से होता है, ठीक है। If these radioisotopes are not properly handled, these emits radiation causing pollution, ठीक है। तो अगर इन रेडियो आइसोटॉप्स को हम अच्छे से हैंडल ना करें तो ये क्या करते हैं? ये रेडिएशन एमिट करते हैं, ये रेडिएशन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जो कि, और ये इस तरह के रेडिएशन को रिलीज करते हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेलीविजन सेट प्रोड्यूस रेडिएशन विच आर
विच कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो जो हमारा टेलीविजन सेट है, जो हमारे घर में टेलीविजन लगे हुए होते हैं, वो भी एक तरह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं कि इनका जो रेडिएशन होता है, इनमें से जो रेडिएशन निकलता है वो इतना हार्मफुल होता है कि ये समटाइम आपके सेल में म्यूटेशन कॉज कर सकता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो कैंसर कॉज कर सकता है ये। सिक्स वन इज माइनिंग, किसी भी तरह का माइनिंग, ठीक है, जहाँ पे कि रेडियो एक्टिव ऑर्स प्रेजेंट है, जैसे कि यूरेनियम का माइनिंग होता है ना, इस तरह से जो भी माइनिंग है जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का माइनिंग हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जिसमें क्या होता है ना कि माइनिंग के टाइम में क्रस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो क्या है, वो अगेन जैसे जो लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, जो माइन वर्कर्स है वो वर्क कर रहे हैं, वो इनहेल कर ले रहे हैं, या फिर वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गए, फिर वही अगेन सेम थिंग कि रेनफॉल हुआ और वो सेटल डाउन होके कहाँ चले गए, सॉइल में आ गए, या फिर वो वाटर वाटर स्ट्रीम में चले गए, और नाउ दे आर कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे होते हैं मेन मेड रेडिएशन। और आर्टिफिशियल रेडिएशन, नेचुरल रेडिएशन कौन सा था, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, कॉस्मिक रेज, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स, ये सब नेचुरल में थे। और जो आर्टिफिशियल है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडियो आइसोटॉप्स, टेलीविजन सेट्स एंड माइनिंग। अब वी विल सी नाउ इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन, क्या अफेक्ट होता है, क्या कॉज, वो क्या इफेक्ट है न्यूक्लियर पोल्यूशन का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, रेडिएशन कॉजेज जीन म्यूटेशन। रेडिएशन क्या करता है, जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन टेंड टू पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। और जैसे ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन को पास हो सकता है। जो इसका इफेक्ट है जेनेटिक म्यूटेशन का, वो कहाँ पास होता है, फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन में पास हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन इन बोन मैरो में कॉज ल्यूकेमिया। अगर किसी तरह का रेडिएशन हो गया बोन मैरो में, तो वो क्या कॉज कर सकता है, ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है। ठीक है, रेडिएशन में कॉज स्किन बर्न्स। रेडिएशन से क्या हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है फर्दर। ठीक है, अगर पेल्विक रीजन में रेडिएशन हुआ है, तो क्या रेडिएशन एट द पेल्विक रीजन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी कॉजेज डैमेज टू द फीटस, वो क्या कर सकता है, फीटस पे डैमेज कॉज कर सकता है। रेडिएशन की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन कॉजेज द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कैंसरस सेल का ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाता है रेडिएशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट कम इमीडिएट इफेक्ट ऑफ शॉर्ट स्पाइन exposure of nuclear radiation are nausea, vomiting, diarrhea, loss of hair, nails, bushes, owing to subcutaneous bleeding, etc. अगर ये जो न्यूक्लियर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, नेल्स ब्रूशेस फॉर्म हो सकते हैं। ओके, और ना इवन स्किन से सबक्यूटेनियस लेयर से हमारे ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो सकता है। डिलेड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इंक्लूड्स कैटरैक्ट, ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट ट्यूमर, cardiovascular disorders, premature aging and reduced lifespan। तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बोलते हैं या डिलेड इफेक्ट बोलेंगे, उसमें क्या हो सकता है कि देखो किसी पर्सन को हो सकता है कैटरैक्ट हो जाए, ल्यूकेमिया हो जाए, ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग हो सकता है, रिड्यूस लाइफ स्पैन, उसका लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है, मतलब वो जल्दी मर जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सपोजर विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द एटमॉस्फेयर। जो रेडियो ये न्यूक्लियर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो भी बहुत हार्मफुल है, किसके लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, तो मतलब हमारा ये इकोसिस्टम को भी खराब कर रहा है। ओके, damaging our ecosystem also. High radiation exposure have much food toxicity and can quickly kill the victims. अगर रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो हाई है, अगर रेडिएशन का जो पावर है वो हाई है, अल्फा बीटा गामा जो भी है रेडिएशन है, उसका एक्सपोजर अगर हाई है, उससे क्या हो सकता है कि जो भी लोग उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे, उस रेडिएशन के रडार के अंदर आएंगे, तो दे कैन बी किल्ड, बहुत जल्दी उनका किल हो, उसका डेथ हो सकता है, उन लोगों को, उनको किल कर सकता है ये रेडिएशन, दीज रेडिएशन आर सो मच लीथल। ओके, हायर हायर रेडिएशन डज कॉज डैमेज टू द टिश्यू ऑफ हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा। जो हायर रेडिएशन होता है ना वो क्या कर सकता है,
हमारे ब्रेन के टिश्यू को या हार्ट के टिश्यू को भी डैमेज कॉज कर सकता है। तो दिस आर अबाउट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन का ये इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को? ठीक है, दैट वी विल सी कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देखो, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा हैजार्डियस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो जितना हो सके हम इसको प्रिवेंट करें और कंट्रोल करके यूज करें तो वही ज्यादा सही है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अभी की जो डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है उसमें से काफी सारी चीजें हमको ये सारे इन सारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज से ही मिलती है। तो हम इनको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना हो सके इनका यूज कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। और क्या है, जितने भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो बॉडी में, वो सारे प्रिकॉशन लेने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टू कंट्रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ रेडियोएक्टिव pollution are: care should be taken to check the sources of man-made radiation pollution। केयर करना बहुत जरूरी है ताकि हम जो भी मेन मेड रेडिएशन पोल्यूशन का जो सोर्सेस है ना वो चेक कर सकें। ठीक है, सेकंड इज द न्यूक्लियर रिएक्टर शुड बी प्रिफरेबली मेंटेन टू अवॉइड एक्सीडेंटल लीकेज। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका अ, हमको उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना, उसका टाइम टू टाइम उसका रिपेयर होना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम उसका चेक होना चाहिए ताकि कोई लीकेज ना हो, क्योंकि अगर वंस एक बार लीकेज हो गया तो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट शुड बी बैड। जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं ये, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हार्म कॉज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट में क्या होता है ना, ऑल ऑफ ए सडन अ लॉट ऑफ हार्मफुल रेज आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हार्म करता है, तो न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो बैन हो जाने चाहिए जितने भी है। लीकेज फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इंक्लूड्स द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज नीड टू बी चेक्ड। जिस भी तरह का लीकेज अगर होता है तो इसके लिए, लीकेज को से बचाने के लिए हर टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनका चेक होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी ये न्यूक्लियर सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनका चेक होते रहना चाहिए, है ना। और लेबोरेटरीज में भी चेक होते हैं इन सब का यूज, तो उसका भी चेक होता रहना चाहिए। टाइम टू टाइम आपने चेक करना है कि कोई लीकेज ना हो जाए। ठीक है, द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल मस्ट बी सेफ एंड सिक्योर। जितना भी उसका डिस्पोजल, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है आफ्टर एनी रिएक्शन, द रेडियो एक्टिव वेस्ट विच इज जनरेटेड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी डिस्पोज्ड सेफ एंड सिक्योरली। ओके, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको क्या करना है, स्टोर करना है सेफ प्लेस में। एंड और इनको हमको हार्मफुल मस्ट बी चेंज्ड इनटू हार्मलेस फॉर्म, और इनको हार्मलेस फॉर्म में हमको चेंज कर दे। ठीक है, द रेडियो एक्टिव वेस्ट विथ अ वेरी लो रेडिएशन मस्ट बी पुट इनटू द सीवेज। जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनको जिनका जो रेडिएशन पावर बहुत कम है उसको हम सीवेज में पुट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा रेडियो एक्टिव वेस्ट है जिसका रेडिएशन पावर बहुत ज्यादा हाई है तो उसको हमने सीवेज में नहीं डिस्पोज करना। ठीक है, द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मस्ट बी फॉलोड ऑल द सेफ्टी मेजर्स। सारे सेफ्टी मेजर्स अच्छी तरह से फॉलो करने चाहिए। द प्रोटेक्टिव गारमेंट मस्ट बी यूज्ड। जो लोग जो ये रिएक्शन में या फिर जो ये मिनरल माइंस में या फिर ये रेडियो एक्टिव रिएक्ट इन सब जगह पे काम करते हैं उनके लिए एक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स होना चाहिए, और उनको कंपलसरी होना चाहिए कि वो गारमेंट पहन के ही उस एरिया में एंटर करें। ठीक है, जितने भी वर्कर्स न्यूक्लियर प्लांट ये सब में काम कर रहे हैं ना उनके लिए प्रोटेक्टिव गारमेंट होना चाहिए, जो कि हर एक चीज इंक्लूड करेगा, लाइक मास्क हो गया, कैप हो गया, ग्लव्स हो गया, शू कवर हो गया, है ना, गाउन है, सारी चीजें होनी चाहिए, आई ग्लासेस है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और each and every person should first wear these garments and then should be allowed to enter into the nuclear plant. The natural radiation must be at the permissible limits.
तो जो नेचुरल रेडिएशन है ना, वो भी एक लिमिट में होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, या फिर वहां पे भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या फॉलो करके आप उस जगह पे जा सकते हो या फिर उस जगह पे एंटर कर सकते हो। ओके, न्यूक्लियर डिवाइस शुड बी एक्सपोज्ड लोडेड अंडरग्राउंड। और जितने भी न्यूक्लियर डिवाइसेस है उनको हमने कहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए? तो अगर एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ी तो हमको अंडरग्राउंड एक्सप्लोर करना चाहिए। Contaminants may be employed to decrease the radioactive emission. Okay. Production of radioisotopes need to be minimized. जितने भी radioactive isotopes है और यू कैन से रेडियो आइसोटॉप्स है, उनका प्रोडक्शन कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्मफुल रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड्स। जितने भी हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होते हैं ना, उनको डिस्पोज करने के एक्सट्रीम प्रिकॉशन लेना जरूरी है। जितने भी फिशन रिएक्शन नीड टू बी मिनिमाइज। ऑल द फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है ना कि जो दो मॉलिक्यूल्स है वो हम क्लोजर एंड दे फ्यूज टुगेदर, दो से एक हो जाते हैं या फिर 10 से एक हो जाएगा, ऐसा होता है फ्यूजन में। और फिशन में क्या होता है, एक जो पार्टिकल है वो ही ब्रेक होके 10 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ जो फिशन रिएक्शन है यानी कि एक पार्टिकल ब्रेक डाउन होके बहुत सारा पार्टिकल फॉर्म कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को भी मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। क्योंकि फिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। अगर अगर एनवायरनमेंट को हार्म बहुत कॉज करता है ये, ठीक है। पोल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फिशन रिएक्शन में FISSION फिशन रिएक्शन में ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर माइंस वेट ड्रिल्स में बी एम्प्लॉयड along with underground drainage। ठीक है। जितने भी न्यूक्लियर माइंस है जहाँ से हम न्यूक्लियर जैसे न्यूक्लियर मटेरियल निकालते हैं, जो ऐसे माइंस होते हैं, वहां पे जितना हो सके वेट ड्रिल का यूज करना चाहिए। गीला जो ड्रिल होता है ना, ऐसा ड्रिल जिसमें वाटर सप्लाई भी हो हल्का सा, ऐसे ड्रिल का यूज करना चाहिए। ऐसे ड्रिल का क्यों यूज करेंगे? अगर ड्राई ड्रिल का यूज करेंगे तो जितना भी उसमें जो डस्ट पार्टिकल निकलेगा ना, वो चांसेस है कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो इनहेल कर ले, उसके बॉडी में एंटर हो जाए। अगर वेट ड्रिल होगा तो क्या होगा कि पानी पड़ रहा है उस सब्सटेंस के ऊपर, तो उसका जो डस्ट है वो सेटल डाउन होता रहेगा, तो इनहेलेशन का कम हो जाएगा। ठीक है। इसके ही साथ साथ क्या होना चाहिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी होना चाहिए वहां पे, ताकि जो भी सब्सटेंसेस है वो अंडरग्राउंड ही बाहर कांटेक्ट में ना आए और अंदर ही अंदर उनका ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके लिए हम ऐसे करेंगे। Then next comes the nuclear medicines and radiation therapy should only be applied when absolutely necessary। जितने भी न्यूक्लियर मेडिसिन है या फिर रेडिएशन होता है उनका यूज, जो भी रेडिएशन थेरेपी है, इन सबका यूज या एप्लीकेशन तभी होना चाहिए जब जरूरी है, बहुत जरूरी है तभी इनका एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर जरूरी नहीं है तो इनका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेफ्टी मेजर्स शुड बी एनफोर्स्ड। जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको इन्फोर्स करना है और बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है, क्योंकि अगर हम सेफ्टी मेजर अच्छे से फॉलो करेंगे तभी हम किसी भी तरह के एक्सीडेंट से, न्यूक्लियर एक्सीडेंट से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजर से बच सकते हैं। अदरवाइज लीकेज होना, एक्सप्लोजन होना, एक्सपोजर होना बहुत कॉमन है। और ये सारे जितना भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये एक्सपोजर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन कॉज करता है लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट कम्स द, तो ये हो गया पूरा अबाउट दी कंट्रोल ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, कि कैसे हाउ वी आर सपोज टू कंट्रोल द रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ वी आर गोइंग टू सी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, वेस्ट इज a byproduct of human activity, okay, which has lack of use. Waste can be classified through various methods on the basis of physical state, solid, liquid, and gaseous, and then within solid waste according to its original use, packaging, waste, food waste, etc., materials, glass, paper, etc., physical properties, domestic, commercial, biodegradable, non-biodegradable, etc. Solid waste have prevailing characteristics which them apart from the liquid and gaseous waste. तो जो
सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉलिड वेस्ट का? दे आर सॉलिड, राइट? और वेस्ट क्या होता है? वेस्ट वो उसकी यूजफुल सब्सटेंसेस जनरेट होने वाला कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि यूजफुल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट को हम कौन सी टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। मतलब जो उसका फिजिकल स्टेट होता है, जिस तरह से वो फिजिकली दिख रहा है, उस स्टेज में हम तीन तरह से वेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। अगर सॉलिड फॉर्म है तो वो सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा कैटेगरी में। लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड वेस्ट आ जाएगा, एंड गैशियस फॉर्म में तो गैशियस वेस्ट हो जाएगा। ओके। So now we will see the definition of solid waste management. Okay, solid waste is the collecting, treating, and disposing of solid materials that is discarded because it has served its purpose or it's no longer useful. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है? कलेक्ट करना, उसका ट्रीट करना और उसको डिस्पोज करना, सारा आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है? क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है वो वेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका यूज हो चुका है या फिर वो यूजफुल है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज वेस्ट, राइट? तो जो सॉलिड वेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हो उसको कलेक्ट करना, इसके प्रोसेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या आ जाता है? जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना एंड उसको डिस्पोज करना, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर दिस। अब देखिए, अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है सॉलिड वेस्ट का तो ये बहुत ज्यादा सैनिटरी इशू में कॉज करता है, ठीक है? ये अनसैनिटरी होता है, मतलब ये साफ सफाई में बहुत ज्यादा दिक्कत कॉज करता है, और ये कई तरह के पोल्यूशन को कॉज कर सकता है, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज कर सकता है। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सॉइल पोल्यूशन आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन आ जाएगा, एयर पोल्यूशन आ जाएगा, है ना? ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। और जो सॉलिड वेस्ट है उसमें से बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स जनरेट होते हैं जो कि बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है? जैसे रोडेंट एंड इंसेक्ट, जितने भी रोडेंट है एंड इंसेक्ट्स है वो जनरेट होते हैं। रोडेंट एंड इंसेक्ट में क्या आ जाएगा? रोडेंट मीन्स माइस है ना, रैट है, ये सारी चीजें रोडेंट में आ जाती हैं। और इंसेक्ट मतलब जितने भी इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सब जनरेट होते हैं उन सब चीजों से। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कितने तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑरिजिन सॉलिड वेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, जैसे हमको कहाँ से वो सॉलिड वेस्ट मिल रहा है उसके बेसिस में सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? अर्बन एंड म्युनिसिपल वेस्ट, सेकंड इज हॉस्पिटल वेस्ट, थर्ड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, एंड फोर्थ वन इज हजार्डियस वेस्ट। तो जहाँ से वो वेस्ट निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बेसिस में सॉलिड वेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज अर्बन एंड म्युनिसिपल वेस्ट, मतलब जो ये अर्बन एरिया से निकलते हैं या फिर जो भी म्यूनसिपालिटी से निकलता है, ठीक है, वो वेस्ट आ जाता है अर्बन और म्यूनसिपल वेस्ट में। देन आता है हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट, जितने भी वेस्ट जो हॉस्पिटल में जनरेट होते हैं उनको कहा जाता है हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। थर्ड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना जो इंडस्ट्री से वेस्ट जनरेट होता है वो कहा जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। एंड फोर्थ वन इज हैजार्डियस वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उन्हें कहा जाता है हैजार्डियस वेस्ट। हैजार्डियस वेस्ट, ओके। Solid waste consists of household waste, construction and demolition debris, sanitation residue, and waste from street. This garbage is generated mainly from residential and commercial complexes. Okay.
Rising urbanization, change in lifestyle and food habits are the main reason and municipal solid waste is forming the bulk of solid waste. तो ये जो अर्बन और म्यूनिसिपल वेस्ट वो कहाँ से जनरेट होता है, मोस्टली अर्बन एरिया में जो जनरेट होता है, जितना भी जो अ, घर के आसपास से है ना, जो वेस्ट जनरेट होता है, और हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से या फूड हैबिट में चेंजेस की वजह से जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि अभी जो जितने भी फूड आइटम्स आते हैं मोस्टली पैक्ड फॉर्म में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पैकिंग होती है वो भी एक सॉलिड वेस्ट जनरेट करती है, चाहे वो प्लास्टिक पैकेजिंग हो चाहे वो कार्डबोर्ड पैकेजिंग हो, बट समहाउ दे आर जनरेटिंग वेस्ट है, तो ये वेस्ट में आ जाता है, अर्बन एंड म्युनिसिपल वेस्ट में आता है। अब आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट व्हिच कैन बी डिकम्पोज, जिसको डिकम्पोज हो सकता है, वो आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। एग्जाम्पल होता है फूड, वेजिटेबल, टी लीव्स, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता है, ऐसा वेस्ट। तो कौन कौन सा, ये पॉलिथीन बैग्स है, स्क्रैप मटेरियल है ना, ग्लास बॉटल्स है, ये सारे आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नाउ सेकंड वेस्ट इज हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे हॉस्पिटल वेस्ट किस टाइम पे जनरेट होता है, डायग्नोसिस के टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पे, इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, है ना। और जो वेस्ट हॉस्पिटल से जनरेट होता है उसे कहते हैं हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। तो हॉस्पिटल से कौन कौन से वेस्ट निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट कौन कौन से निकल जाते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल सिरिंज हो गया, बैंडेजेस है, कॉटन स्वैप्स हैं, बॉडी फ्लूइड है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, है ना, जितने भी बॉडी का जो ब्लड का है या फिर ऑर्गन वेस्ट जितना भी निकलता है, बैंडेजेस हैं, मेडिसिन है, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, ये सारे जो वेस्ट हॉस्पिटल से निकलते हैं वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट comes the industrial waste. These are the waste extracted by the chemical industries, nuclear plants and thermal power plants and other industries. They include packing materials, rubbish, organic waste, acid, alkali, staple, car material or metals, rubber, plastic, paper, glass, wood, oil, paint, dyes, etc. इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ये जो वेस्ट है ना वो कहाँ से निकलता है, केमिकल इंडस्ट्री से निकलता है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है और अदर इंडस्ट्रीज है, वो सब जनरेट करते हैं इन सबको। इसमें क्या क्या आ जाता है, मटेरियल को पैकिंग करना आ जाता है, ठीक है, जितने भी रबिश जनरेट होते हैं वो आ जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं जितने भी, है ना, जो भी वेस्ट बेसिकली इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है वो सारे आ जाते हैं, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास, वुड, ऑयल, पेंट, डाइज एक्सेट्रा। तो ये सब आ गया इंडस्ट्रियल वेस्ट में। नेक्स्ट कम्स the hazardous waste. Hazardous waste are dangerous waste which are which are very much dangerous for human, plant, animal and to our environment are termed as hazardous waste. These wastes are quite dangerous to human, plant, animal and the overall environment as they consist of toxic substances that are of chemical nature. हजार्डियस वेस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हम ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्यों होते हैं, बिकॉज इनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि केमिकल, जिसका नेचर होता है केमिकल नेचर होता है, ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे हाउस होल्ड से जो जैसे आपके घरों से जो वेस्ट जनरेट होता है, जो कि हजार्डियस वेस्ट हो सकता है, वो है ओल्ड बैटरीज, जो पुरानी बैटरीज हैं, शू पॉलिश, जो शू का पॉलिश होता है ना वो भी बहुत हजार्डियस है, पेंट टिन्स मतलब जो पेंट के जो डब्बे होते हैं, ओल्ड मेडिसिन, मेडिसिन बॉटल्स, ओके। हॉस्पिटल वेस्ट से कौन कौन सा हजार्डियस वेस्ट निकल सकता है, जैसे कि कोई केमिकल्स है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, फिनॉल है, डिसइंफेक्टेंट है, मरकरी है ना, ये जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे हजार्डियस वेस्ट में आ जाएंगे।
और जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्री से कौन से निकल सकते हैं, मेटल निकल सकता है, केमिकल निकल सकता है, पेपर, पेस्टिसाइड्स, डाई, रिफाइनिंग एंड रबर गुड इंडस्ट्रीज, ये सारे आ गए इसके अंदर हजार्डियस वेस्ट के अंदर। तो हजार्डियस वेस्ट हर जगह से निकलता है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर से हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो। अगर सॉलिड वेस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है? If solid waste are not treated properly, then what will happen? This we will see on next class. पिछले क्लास में हम लोग ये देखेंगे. That's it for today's class.